ओके सो हे गाइस, आई एम फाइनली बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं कुछ हटके करने वाली हूँ। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और देखनी है मेरी, देन डू लीव अ कमेंट बिलो। अब मैं कुछ रिलेशनशिप क्वेरीज पढ़ने वाली हूँ फ्रॉम रेडिट। तो शुरू करने से पहले आई जस्ट गिव अ ब्रीफ डिस्क्लेमर। जितनी भी मैं रिलेशनशिप क्वेरीज पढ़ने वाली हूँ वो सारी की सारी इंग्लिश में होने वाली है। तो अगर आप वो इंसान है जिसको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होती है या थोड़ी इफ यू प्रेफर हिंदी, अगर हिंदी आपकी प्रेफरेंस है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी भी ये सारी क्वेरीज है वो मेरी हिंदी ऑडियंस को ट्रांसलेटेड हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन मैं इतना भी ज्यादा ट्रांसलेशन में नहीं जाना चाहती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ब्रीफली ट्रांसलेट करूंगी, बट इजी ट्रांसलेशन होगा, आप लोग को समझ में, आई होप आपको समझ में आए। So let's start with our first query. Am I the 20-year-old female, the to my 24-year-old male boyfriend, the ex? I was dating this guy for the past 3 years. He's a nice person. He is very faithful and loyal, but he disappears very often and doesn't give me the required time. Also, he has a lot of shit going on in his life, career-wise and overall. But whenever we talk, we mostly talk about him, and I try to cheer him up and do everything that I can. By disappearing, I mean he wouldn't pick up my calls or text back or ask if I'm okay or not. Basically, I feel he doesn't even know me because he spends so less time with me. Moreover, he doesn't take much effort either. I like low maintenance gifts, like maybe flowers or handwritten letters. But I can't even expect that from him, even on my birthdays or anniversaries. And I, on the other hand, always give gifts to him, appreciating his presence in my life. Not that it means a lot, but I'd appreciate some kind of consideration or some kind of thought he'd put into something if I like it. I do love him. But because his life is so messy and unstable, not just now, but has always been since the course of our relationship, it has taken a toll on my mental health as well. I have always tried my best to be supportive and loving to him. I never complained either till like 2 years of our relationship, but the last year has been so draining. I'm never able to share things to him. If I'm feeling bad about something, I can't go to him because I would just rather talk to him in the time that he gives me than rant or be cranky. I'd rather listen to him and comfort him. Because of being like this, I have bottled up my feelings and my problems, and now even when he sometimes asks me to open up, I cannot. I decided to end things with him to maybe give time to myself. And in the duration of that, I have been feeling better than ever. He calls me now 30-40 times a day after I said I don't want to break, I just want to break up. The same man wouldn't call me for days sometimes, and I don't really want to answer any of them. I answer once or twice and explain everything to him over and over why I don't want this anymore, and he says he will change. He had said this before but never really changed. I'm much peaceful now. I like myself better. Am I the to leave someone who loves me? So मेरे हिंदी व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सा जिस्ट में ट्रांसलेट कर देती हूँ। ये जो 20 साल की लड़की है, ये एक 24 साल के लड़के को डेट करी थी, अभी ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप का कारण ये है कि वो लड़का मोस्टली गायब रहता था, इमोशनली अनअवेलेबल रहता था, अपने प्यार को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करता था, वो उसको अच्छे से गिफ्ट्स नहीं देता था, ना उसके बर्थडेज पे ना एनिवर्सरीज पे, और वो उसके लिए वो कभी टाइम नहीं निकालता था। और वो हमेशा अपना, क्योंकि उस बंदे की लाइफ इतनी मेस्ड अप थी, वो हमेशा अपना रंडी रोना निकालता था उसके सामने, हमेशा दुखी रहता था, हमेशा वो बंदी उसको कंसोल करने की कोशिश करती थी। तो 3 साल बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने डिसाइड किया कि वो ब्रेकअप कर लेगी, और उसने ब्रेकअप किया एंड शी वाज फीलिंग मच बेटर। वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने लगी, वो अपने बारे में काफी ज्यादा बेहतर महसूस करने लगी क्योंकि उसने उस लड़के के साथ ब्रेकअप कर दिया। अब वो लड़का उसको 30-40 बार कॉल करता जाता है, वो लड़की उसको सिर्फ दिन में शायद 2 बार फोन उठा के एक्सप्लेन करती है कि उसको ब्रेक नहीं चाहिए, उसको ब्रेकअप ही चाहिए। तो पूछिए कि क्या वो खराब इंसान है? मैं इस पर अपना पर्सपेक्टिव देती हूँ। मेरे साथ ये हो चुका है, कई दोस्तों ने मेरे साथ किया है,
मेरे एक्स ने भी टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द रिलेशनशिप, एंड बीच बीच में मेरा एक्स भी ये करता था। एक होता है बहुत बड़ा आई लव यू इजहार करना, आई लव यू, ऊपर से आई लव यू बोल देना। बट जब आपको अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ कमिटेड रहना होता है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपना काम छोड़ के, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के उसके साथ रहना है, पूरा चिपक के रहना है, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन जब आपके पार्टनर को, आपकी गर्लफ्रेंड को, आपके बॉयफ्रेंड को, आपके दोस्त को आपकी जरूरत हो, और जब आप उनके लिए अवेलेबल ना हो, जब जरूरत आने पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अवेलेबल ना हो या आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए अवेलेबल ना हो, तो वो रिलेशनशिप नहीं होती। वो रिलेशनशिप बहुत ही वन साइडेड होती है। फिर वो रिलेशनशिप नहीं होती, वो रिलेशनशिप एक तरफा रिलेशनशिप होती है। या तो इस केस में जो लड़की है वो एक पंचिंग बैग की तरह बन जाती है, क्योंकि लड़की ही सारा लड़के का जितना भी इमोशनल मेंटल टर्मोइल है वो अब्सॉर्ब कर रही है, वो सुन रही है, वो उसको कंसोल कर रही है। लेकिन जब उसकी खुद की मेंटल हेल्थ की बारी आती है तो लड़का उसके लिए उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, उसका साथ देने को तैयार नहीं होता, उसकी मेंटल हेल्थ में हेल्प करने को तैयार नहीं होता। आई वुड से कि बहुत अच्छा किया अगर ब्रेकअप किया, बिकॉज आगे जाके ना फिर आपकी ही मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचता। आगे जाके फिर शायद वो, आई एम नॉट सेइंग कि वो चीट करता कि नहीं करता, लेकिन आगे जाके आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम को भी नुकसान पहुंचता। आगे जाके बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती फिर रिलेशनशिप्स में। ऐसी रिलेशनशिप्स फिर स्लोली एंगर में भी बिल्डअप होती है। ऐसी रिलेशनशिप्स फिर स्लोली बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी बनती है। आप उसकी बाउंड्रीज की कदर कर रहे हो, आप उसको बहुत मॉलीकॉडल कर रहे हो, आप उसको बहुत ही ज्यादा ओके आई लव यू, आई सपोर्ट यू, आई लव यू, विच इज अ गुड थिंग। But if the other person is not doing it, then you don't have to do it as well. अब देखो, respect, love, support, ये तीनों चीजें टू वे स्ट्रीट होती हैं। तो अभी सेकंड वाले पे आते हैं। 19-year-old male and 19-year-old female. How did you practice intimacy in your teen relationships? I, a 19-year-old male, and my girlfriend, 19, love to give physical affection to each other and also sex. But we are not really independently living on our own that we can do this kind of stuff at our own place yet. Slight smooches, kisses are fine to do if we get a little private space in public. But I do not feel comfortable with making out or more. We have gotten lucky here and there when she was at home alone and could call me over. But this is a very rare occurrence and we have had sex just a few times like this. Against Oyo and stuff, because I've heard there is a hidden camera culture. I have heard that, by the way. And there have been cases of blackmailing as well because they have all your details. I don't know what this leads us to, but is there someone who has faced a similar problem and was able to work their way around it? First things first, no निब्बा निब्बी jokes. ये सब बहुत normal है, ये सब feelings बहुत normal है, ठीक है। I was also in a relationship when I was 18. मैं भी जब 18 की थी ना, तो मैंने भी 3 साल तक आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ सीनियर ऑफ माइन। ही वॉज माई फर्स्ट रिलेशनशिप, मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। अभी भी बात थोड़ी बहुत होती है, नाउ तो वी हैव ब्रोकन अप। दीज इमोशंस आर वेरी वैलिड एंड एज एन एडल्ट आई अंडरस्टैंड। एज एन एडल्ट आई एम 25 नाउ एंड आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस बिकॉज मैंने भी ये सब किया है। मैं भी ओयो गई हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मैंने भी ये सब किया है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन एज एन एडल्ट I will never recommend Oyo rooms to anyone. Not because कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, touch wood, कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन पता है क्या है, बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे, एंड अ लॉट ऑफ होटल्स, ओयोस को भी देख लो, वो लोग आपकी आईडीज चेक करते हैं। कोई भी मिसहैप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई भी पुलिस की रेड पड़ जाती है, पुलिस बाय चांस आके, एंड पुलिस इज अ वेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाँ, पुलिस अगर वारंट के साथ बाय चांस आप उस ओयो रूम में हो जहाँ पे पुलिस आ जाती है एंड पूछती है कि आईडीज दिखाओ सबकी, यहाँ पे कोई ऐसा वैसा कुछ तो कोई एलिमेंट तो नहीं है, एंड बाय चांस आपने अपनी आईडीज सबमिट की थी फोटोकॉपी के लिए, एंड वो लोग आपकी आईडी प्रूफ्स का कॉपी देख लेते हैं, you guys might be in trouble. You guys might be in serious trouble. आप लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। To be very honest with you, I will never ever
recommend OYO rooms. I'm not saying कि आप लोगों के जो भी sexual urges है वो valid नहीं है, बिल्कुल valid है. As an adult, I'm telling you it is completely valid. But there is a time and place for everything. जो 19 की एज है ना, वो बहुत ही टेंडर एज है. आपका जो फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, आई डोंट नो वेदर आई एम गेटिंग द साइंटिफिक टर्म्स और नॉट, पर आपका जो फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ, वो अभी तक ग्रो नहीं किया है. वो 25 साल की उम्र के बाद थोड़ा सा मैच्योर एंड 25 साल तक थोड़ा वो डेवलप होता है, राइट? तो एवरीथिंग हैज अ प्लेस, एवरीथिंग हैज अ टाइम, एवरीथिंग हैज सम मैच्योरिटी लेवल. ठीक है, आप अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हो टू डील विद ऑल द लीगल मिसहैप्स एंड all the these kind of tricky situations, right? So that's it. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. Do leave your thoughts in the comment section below. Make sure to subscribe to my channel. Give this video a big thumbs up and bell icon पे जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरी वीडियो के लिए notified रह सके. Give your perspectives, give your comments, share me your thoughts in the comment section below. Till then, see you next time.